Now we are looking WH question in simple future tense. Here I will teach you how to construct WH question in simple future tense, how to ask question to someone in simple future tense. Our structure will be for simple future tense. For WH family, WH word, name. In rare case, name will be given. You will have to mark it. Otherwise, no need to put it in your question. Then will plus subject plus MB first plus object oblique noun and adjective. Again, WH word, rare case you will put name. Will plus subject plus MB first plus object oblique noun and adjective. This is structure for WH family. Now अभी आप लोग देख रहे होंगे ये WH वर्ड आएगा. आपको यदि रेयर केस ही होता आपका नेम का रेयर केस, these are only two words which and whose, there we have to put name. ठीक है, ये दो वर्ड होते हैं जहां हमें नेम पुट करना पड़ता है. these words are which and whose, mainly rare case. Now I am giving various example on WH family, how to ask question to someone. Now what will you do after graduation? What will you do after graduation? What will you do after graduation? Its Hindi meaning will be आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे. आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे. Now look carefully. ये आपका WH word. Then I have marked here will, subject you, and we first do, after to graduation object. Again, first I have taken here WH word what, then will, subject you, amplify do, after graduation, that is your object. Now question is rising up here, why I have not taken name here. मैंने यहाँ पे name क्यों नहीं लिया. Name only rare case में होता है, ये only two word होता है which और whose, जिसमें हमें name put करना mandatory है, otherwise no need to put it. Rare case में आप name लगाते हैं. अगर नेम मेंशन है, ये नेम कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई इवेंट हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, एनी मटेरियल, एनी गेम, विच शेड टू बी नेम. नेक्स्ट what will an authority issue them. What will an authority issue them? What will an authority issue them? Its Hindi meaning will be authority उन्हें क्या इशू करेगी. अथॉरिटी इन्हें क्या इशू करेगी. अभी आप देख रहे होंगे सिमिलरली WH word will, subject and authority, issue MB first, then object. Now thus sentence will be constructed by using this structure. Now I am giving example by using name in WH word. अभी हम want का एक sentence ले रहे हैं जो आपको नेम के साथ में कंटेन होगा. नेक्स्ट what articles will you purchase here. What article will you purchase here? What article will you purchase here? Its Hindi meaning will be आप कौन से सामान खरीदेंगे. आप कौन से सामान खरीदेंगे या फिर आप क्या सामान खरीदेंगे. आप देख रहे होंगे ये WH word जब आपका बीच का सेंस शो करे तो आप इस नेम को पुट करते हैं. जहाँ पे आपका आर्टिकल मीन्स कोई नेम मेंशन था, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन हियर नेम, अदरवाइज नो नीड टू पुट इट. आपका नेम मेंशन है, यू विल पुट आफ्टर WH word, अदरवाइज आपको पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है.
यहाँ पे ये जो व्हाट है, ये व्हाट जो है ये विच का मीनिंग शो कर रहा है, इट इज शोइंग मीनिंग ऑफ विच। ये व्हाट विच का मीनिंग शो कर रहा है, दैट इज व्हाई आई हैव पुट नेम आफ्टर WH. We are looking next example. Now we are looking next example on WH question. Here we are taking which clothes will a tailor stitch in a shop? Which clothes will a tailor stitch in a shop? Its Hindi meaning will be टेलर शॉप में कौन से कपड़े सिलेगा, टेलर शॉप में कौन से कपड़े सिलेगा, its Hindi meaning. Now if you are contracting sentence by using which and whose, you will have to put name after WH. यदि आप ये which से कभी भी कोई सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे तो जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया कि WH वर्ड के बाद में नेम आएगा, ओनली केस ऑफ which and whose. ये which के केस में आपको नेम पुट करना नेसेसरी है। फिर आप यहाँ पर which पुट करेंगे, सब्जेक्ट एंड बी फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट। अगेन WH वर्ड, ये जो मैंने आपको नेम बताया था स्ट्रक्चर में, आपने इस नेम को पुट किया, देन विल, फिर सब्जेक्ट एंड बी फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट. नाउ sentence will be framed by using that structure in case of which and whose. Now again I tell example. Which धुतेला साफ वहीं से होता है। कंप्यूटर, अभी सही दिख रहा है, अभी धुतेला अब साफ हो गया। Which computer will operate in a class? Which computer will they operate in a class? Which computer will they operate in a class? Its Hindi meaning will be वे क्लास में कौन सा कंप्यूटर चलाएंगे, वे क्लास में कौन सा कंप्यूटर चलाएंगे. Now look carefully. WH word which, then name computer. Computer is considered as a name. यहाँ पे कंप्यूटर को हम नेम की तरह कंसीडर कर रहे हैं. Will subject the MB first operate and into class object. Which के केस में आपको नेम पुटना मैंडेटरी है, नेम पुट करना मैंडेटरी है. Now and next word whose. Whose you will have to mark name after whose. You will have to mark name after whose. Whose its Hindi meaning will be किसका ऑब्लिक किसने. Whose pen will see still from a bag. Whose pen will she steal from a bag? Whose pen will she steal from a bag? Its Hindi meaning will be वो बैग से किसका पेन चुराएगी, वो बैग से किसका पेन चुराएगी. That is its Hindi meaning. Similarly आप देख रहे होंगे which, आप देख रहे होंगे whose, then name, will, subject and the first object. Which के केस whose के केस में भी आपको नेम पुट करना मैंडेटरी है. Now again I tell example on whose. Certificate. Whose wife will they write today.
whose wife will they ride today? Whose wife will they ride today? Its Hindi meaning will be वे आज किसकी बाइक चलाएंगे, वे आज किसकी बाइक चलाएंगे। whose के केस में भी आप whose लिखेंगे, then name will subject plus will be first then object। इस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग होगी। सेंटेंस कैन बी फ्रेम्ड बाय यूजिंग दिस मेथड इन केस ऑफ विच एंड हुज। आपको नेम पुट करना मैंडेटरी है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन। ओनली टू वर्ड, विच एंड हुज। इन केस ऑफ व्हाट यदि आपका विच का मीनिंग शो करता है, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट वर्क, व्हाट आर्टिकल, ये विच का मीनिंग जब शो करता है तो भी आप व्हाट के साथ में नेम पुट करेंगे, अदरवाइज नो नीड टू पुट इट। आपको इसे पुट करने की जरूरत नहीं है। Now we are taking next example on how will you find her address in a way। How will you find her address in a way? How will you find her address in a way? Its Hindi meaning will be आप रास्ते में उसका घर its Hindi meaning will be आप रास्ते में उसका एड्रेस कैसे ढूंढेंगे, आप रास्ते में उसका एड्रेस कैसे ढूंढेंगे। Now how means कैसे, will subject and be first then object। This is framed by using similar structure that I told you before। Next, why will commuters obey traffic rule while driving vehicle? Why will commuters obey traffic rule while driving vehicle? Why will commuters obey traffic rule while driving vehicle? Its Hindi meaning will be commuters व्हीकल को ड्राइविंग करते समय ट्रैफिक रूल क्यों मानेंगे। कम्यूटर्स व्हीकल को ड्राइविंग करते समय ट्रैफिक रूल क्यों मानेंगे। कम्यूटर मीन्स दोज हु आर ऑपरेटिंग बाइक एंड फोर व्हीलर। ये जो आपके टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर चलाने वाले लोग होते हैं, वी कॉल इट कम्यूटर्स। नाउ फॉरवर्ड and by both are similar meaning। forward and by both are similar meaning। क्यों, ऑब्लिक किस लिए। आप by के प्लेस पे forward का यूज भी कर सकते हैं और forward के प्लेस पे y का यूज कर सकते हैं। both are parallel to each other। आप यहाँ y के प्लेस पे forward का यूज कर सकते हैं और आप y के प्लेस पे और आप forward के प्लेस पे y का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट example, forward will a curator, forward will he make fun others। Forward will he make fun others। Forward will he make fun others। Its Hindi meaning will be वह दूसरे का मजाक क्यों उड़ाएगा, वह दूसरे का मजाक क्यों उड़ाएगा। ये फॉरवर्ड का मीनिंग यहाँ पे बाय के केस में यूज हो रहा है। आप फॉरवर्ड के केस में बाय भी पुट कर सकते हैं, बोथ आर सिमिलर मीनिंग। नाउ आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट
What is how many? How many के केस में no need to put HB. How to frame sentence by using how many? How many students will indulge in procession. How many students will indulge in procession? How many students will indulge in procession? Its Hindi meaning will be कितने स्टूडेंट प्रोसेशन में शामिल होंगे, कितने स्टूडेंट प्रोसेशन में शामिल होंगे. प्रोसेशन मीन्स जुलूस. हाउ मेनी इट इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन मीन्स कितना. इट्स हिंदी क्या होती है कितना. ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है. मीन्स दोस एलिमेंट विच कैन बी काउंटेड बाय अस एंड अदर्स. एलिमेंट को जिसको हम काउंट कर सकते हैं हम उसके लिए हाउ मेनी का यूज करेंगे. नेक्स्ट how many events will be organized there. How many event will be organized there? How many event will be organized there? Its Hindi meaning will be हम वहाँ कितने इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे. हम वहाँ कितने इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे. आप देख रहे होंगे हाउ मेनी. देन नेम वी कंसीडर नेम will subject amplified and object. Now how many के these are two different sentences. फर्स्ट केस में मैंने आप लोग देख रहे होंगे सब्जेक्ट के बारे में मिल लिया और सेंटेंस की फ्रेमिंग करी. फर्स्ट केस में आप देख रहे होंगे हाउ मेनी सब्जेक्ट विल एम्प्लीफाइड देन ऑब्जेक्ट. और सेकंड केस है आपका एज पर नेम. ये स्ट्रक्चर एज पर नेम के अकॉर्डिंग फ्रेमिंग किया है जो मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया था उसके. तो हाउ मेनी केस में स्ट्रक्चर कैन बी यूज इन डिफरेंट वे. यू हैव टू प्रैक्टिस वेरियस सेंटेंस टू फ्रेम दिस सेंटेंसेस. आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे आप ऑटोमेटिकली समझ लेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस इन केस ऑफ हाउ मेनी. अभी सेकंड वाला एज पर स्ट्रक्चर है हाउ मेनी नेम विल सब्जेक्ट एम्प्लीफाइड ऑब्जेक्ट. दिस इज स्ट्रक्चर. नाउ नेक्स्ट वी आर लुकिंग अदर वर्ड हाउ मच. हाउ मच इट्स हिंदी मीनिंग विल बी कितने. इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन. इसका भी मीनिंग कितने होता है. इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते. वी कॉल इट अनकाउंटेबल नाउन. हाउ मच राइस विल अ शेफ यूज फॉर कुकिंग. How much rice will a chef use for cooking? How much rice will a chef for cooking? Its Hindi meaning will be शेफ कितनी राइस कुकिंग के लिए यूज करेगा. शेफ कितनी राइस कुकिंग के लिए यूज करेगा. आप देख रहे होंगे हाउ मच देन राइस विल सब्जेक्ट एम्प्लीफाइड देन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट we are taking another word how long. Next word how long. Its Hindi meaning will be कब तक ऑब्लिक कितने देर. कब तक ऑब्लिक कितने देर. how to construct sentence how long will your father wait for us. How long will your father wait for us? How long will your father wait for us? Its Hindi meaning will be
आपके फादर हमारे लिए कब तक इंतजार करेंगे? आपके फादर हमारे लिए कब तक इंतजार करेंगे? नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग will you how long will guest stay in a hotel? How long will guests stay in a hotel? Its Hindi meaning will be guest होटल में कब तक रुकेंगे? गेस्ट होटल में कब तक रुकेंगे? इस तरीके से आप हाउ लॉन्ग के सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं, और भी आप हाउ लॉन्ग के केस में सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं. नाउ आई एम टेलिंग नेक्स्ट वर्ड. नाउ वी आर लुकिंग नेक्स्ट वर्ड, हाउ ऑफन. हाउ ऑफन इट्स हिंदी मीनिंग विल बी कितने बार. हाउ ऑफन इट्स हिंदी मीनिंग विल बी कितने बार. नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस बाय यूजिंग हाउ ऑफन. How often will a priest forgive to you? How often will a priest forgive to you? How often will a priest forgive to you? Its Hindi meaning will be priest आपको कितने बार माफ करेगा. priest आपको कितने बार माफ करेगा. That is its Hindi meaning. Now we are looking next word, whom. Whenever you will construct sentence by using whom, you will have to put preposition. Whom means किनके. Its Hindi meaning will be किनके. It is similar word to who. Whom means किनके. आप इस whom के केस में you will have to put for, to, with. You will have to put this preposition to construct sentence in case of whom. Example, for whom will you to make a kite. For whom will you make a kite? For whom will you make a kite? Its Hindi meaning will be आप किसके लिए काइट बनाएंगे. सॉरी, its Hindi meaning will be आप किनके लिए काइट बनाएंगे. आप किनके लिए काउट बनाएंगे. That is its Hindi meaning. You will have to put this preposition with whom even before or after. आप ये whom के साथ में preposition को यूज करेंगे. Without preposition, this sentence cannot be framed by using whom. Now we are looking at next word, who. Who means कौन. Who means कौन. How to conduct sentence by using who. who के केस में आपको सेंटेंस की फ्रेमिंग कैसे करनी है. I am giving separate structure in case of who. नाउ दिस इज स्ट्रक्चर फॉर हु. हु के केस में आपको कोई सब्जेक्ट पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यहाँ पे होगा हु, फिर आपका ये वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल एम्प्लीफाई देयर ऑब्जेक्ट. मींस यू विल हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस इन केस ऑफ हु. नाउ एग्जांपल, who will join this office. Who will join this office? Who will join this office? Its Hindi meaning will be यह ऑफिस कौन
कौन ज्वाइन करेगा, ये ऑफिस कौन ज्वाइन करेगा। आप लोग देख रहे होंगे हु, देन विल, एंड वी फर्स्ट ज्वाइन, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपने सेंटेंस की फ्रेमिंग करी। नेक्स्ट अगेन, हु विल build a hut beside your house. Who will build a hut beside your house? Who will build a hut beside your house? Its Hindi meaning will be आपके घर के बगल में हट कौन बनाएगा। हट मीन्स झोपड़ी या फिर स्मॉल हाउस, वी कॉल इट हट। आपके घर के बगल में हट कौन बनाएगा, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। आप देख रहे होंगे हु, देन विल, एंड वी फर्स्ट बिल्ड अ हट टू हाउस, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। आप इस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे हु के केस में। आपका कोई सब्जेक्ट की पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड टू पुट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस इन केस ऑफ हु। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, हु विल कम। हु विल कम, कौन आएगा, हु विल कम, कौन आएगा, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। नाउ अभी आप हु के केस समझ गए होंगे। हु पे आपको सेंटेंस की कंस्ट्रक्टिंग कैसे करनी है, इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे, कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस। ना WH में मैंने आपको सारे फीचर बता दिए वन बाय वन। आप सारे वर्ड का यूज करके और भी सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं। एंड यू विल फ्रेम वेरियस सेंटेंस बाय यूजिंग दैट स्ट्रक्चर इन WH फैमिली, एंड यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश बाय यूजिंग दैट स्ट्रक्चर टू आस्क क्वेश्चन टू समवन। इट इज मैंडेटरी टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने आपका WH का पूरा सेशन एंड कर, यहाँ मैं आपका WH का सेशन पूरा एंड करता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा होल WH वर्ड को डिस्क्राइब कर दिया आप लोगों को। आप कैसे WH क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे टू आस्क क्वेश्चन समवन, किसी से क्वेश्चन करने